Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Central Civil Services Pension Rules 1972 Part 2. Already, I have uploaded Part 1 of CCS Pension Rules 1972. So, in this part, most attraction is I will discuss the different types of form required and must be submitted for gratuity and pension, including family pension, death gratuity. Similarly, timeline for submitting different types of forms, pension related forms before retirement, and other provisions or general rules of CCS Pension Rules 1972. Definitely this video would be interesting one, would be exciting one, and you can collect so many informations. It would be useful for you for incoming principal exams in KVS, NVS, EMRS and UPSC principal exam and other state board exams, departmental promotion exams, and other service related exams conducted by the central government and state government. Please, my friends, subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that you can get notification for my upcoming videos. And also in my description box you can get my Telegram link. So you click on this link and join it. It is given in the description box of this video. So you can avail all the service related videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss CCS Pension Rules 1972 Part 2. First one, calculation of pension, Rule 49. One question can be coming. Rule 49, calculation of pension. Two options are there. First we calculate by using the two options and which one is greater. Then according to this pension would be fixed. You see, first option bit A, with effect from 1st January 2006 pension is calculated at the rate 50% of emoluments. Emoluments, यहाँ पर जो emoluments है वो बेसिक पे है, but for medical professional non-practicing allowance added. So for pensionary benefit, basically for pension, emolument is basic pay, dearness allowance and other allowances are not included, only basic pay. For medical fraternity, non-practicing allowance added. So just prior of the retirement deduct the basic pay and 50% of it, okay, 50% of it should be taken. It is first option. Second one, it is 10 months qualifying service emoluments. 10 months qualifying service before retirement. रिटायरमेंट के पहले 10 months qualifying services का emoluments निकालना है, उसका एवरेज निकालना है. So calculate average of the 10 months qualifying service before retirement. कभी कभी क्या है, कुछ डाइज नॉन, ओवरस्टे ऑफ लीव, suspension followed with major penalty, these periods are not included in qualifying service. यदि जस्ट प्रायर टू द रिटायरमेंट वो 10 months के अंदर आ जाता है तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और उसके प्लेस में इक्विवेलेंट पीरियड ले जाएगा. मगर यहाँ पर हमको देखना है जस्ट प्रायर ऑफ द रिटायरमेंट 10 months क्वालिफाइंग सर्विस, 10 months क्वालिफाइंग सर्विस का सर्विसेज का एमोलुमेंट्स निकालना है, उसका एवरेज निकालना है. दोनों ऑप्शन है ए और बी. फर्स्ट हो गया 50% ऑफ बेसिक पे, सेकेंड ऑप्शन हो गया
एवरेज एमोलूमेंट्स ऑफ 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस प्रायर टू द रिटायरमेंट। इस दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उसके हिसाब से पेंशन फिक्स होगा। आइदर ए और बी, व्हिच वन इज ग्रेटर, फिक्स्ड एज पेंशन। चलो नेक्स्ट वन, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन, इट इज रूल 49(2)A। ये रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रूल 49(2)A, रूल 49 अभी हम देखा कि कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, जैसे रूल 49 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में मेंशन है, मिनिमम पेंशन एंड मैक्सिमम पेंशन, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, ये सब मेंशन है। जो रूल 49(2)A है, व्हेन द पेंशनर रीच्ड 80 ईयर्स एंड अबोव, तब उसको एडिशनल पेंशन के लिए वो एलिजिबल है। तो कैसे? एज ऑफ पेंशनर, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन 80 years but less than 85 years, additional pension is 20% of basic pension. It means 20% of basic pension is hiked. 85 years but less than 90 years, 30% of basic pension is hiked, or additional pension is 30% of basic pension. 90 years but less than 95 years, 40% of basic pension is hiked, or additional pension is 40% of basic pension. 95 years but less than 100 years, 50% of basic pension hiked, or additional pension is 50%. Then 100 years or more, 100% of basic pension is hiked, or additional pension is 100% of basic pension. तो यहाँ पर 49(2)A में ये क्लियरली मेंशन है, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन के ऊपर मेंशन है। व्हेन द, जब पेंशनर को 80 ईयर्स और उससे ज़्यादा हो जाता है तब एडिशनल पेंशन के लिए वो एलिजिबल है। तो इसके हिसाब से एडिशनल पेंशन ओके कंसर्न पेंशनर को मिलेगा जब वो रीच करेगा 80 ईयर्स एंड मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान देना है। चलो, पेंशन पेमेंट प्रोसेसिंग टाइमलाइंस applicable to retiring government servants. So timeline before retirement, क्या क्या टाइमलाइन है हम देखेंगे। कौन सा टाइम में क्या सबमिट होगा बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट, यहाँ पर जो 4 कॉलम्स आर देयर, सीरियल नंबर, एक्टिविटी, ड्यू डेट, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल। फर्स्ट वन, वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड 5 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट, फर्स्ट 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद क्वालिफाइंग सर्विस का वेरीफाई होता है और कंसर्न एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सिमिलरली 5 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट, अगेन क्वालिफाइंग सर्विस वेरीफाइड and again certificate issued to the concerned employee। ये जो वेरिफिकेशन होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मगर जो सर्टिफिकेट इशू करता है हेड ऑफ ऑफिस, राइट। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, प्रिपेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यू टू रिटायर विद इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स, रूल 56 में है। ये जो वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस था वो रूल 32 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, आपको याद रखना है रूल 32। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स दोज हु आर गोइंग टू रिटायर विद इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स, जो 12 to 15 मंथ्स के अंदर जिनका रिटायरमेंट होने वाला है उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वो क्वार्टरली होता है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। क्लियर? तो ये टाइमिंग को भी बहुत याद रखना है। और हेड ऑफ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर द लिस्ट 12 to 15 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ओके, क्वार्टरली। ये सेकेंड हो गया। थर्ड वन, प्रिपेरेटरी वर्क ऑन पेंशन पेपर्स, जो पेंशन पेपर्स का जो प्रिपेरेशन, ये हेड ऑफ ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट इज हैपेंड 1 year बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के 1 year बिफोर प्रिपरेशन ऑफ पेपर, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर स्टार्ट हो जाता है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हेड ऑफ द ऑफिस।
नेक्स्ट वन, फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्निश टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड एमोलुमेंट्स और एवरेज एमोलुमेंट्स। ये रूल 59 में है। तो जस्ट 8 months बिफोर द रिटायरमेंट हेड ऑफ ऑफिस इशू द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्वालिफाइंग सर्विस कितना है उसका एक सर्टिफिकेट हेड ऑफ ऑफिस इशू करता है। कंसर्न रिटायरिंग, जो रिटायर होने वाला है जो एम्प्लॉय, उसको इशू किया जाता है। और एमोलुमेंट्स और एवरेज एमोलुमेंट्स, तो सर्टिफिकेट एक इशू होता है। और इसमें भी आपको याद रखना है कि फॉर्म 5 भी इशू होता है। ओके, 8 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग सर्विस एंड फॉर्म 5 इशू टू द एम्प्लॉई हु इज गोइंग टू रिटायर, राइट। ये रूल 59 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में है। डायरेक्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट टू फर्निश रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस विद इन 2 months। जो सर्टिफिकेट हेड ऑफ ऑफिस देता है रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग सर्विस, यदि उसको कंसर्न एम्प्लॉई एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको 2 months के अंदर वो उसको रीजन देना है, वो क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया। विद इन 2 months द कंसर्न एम्प्लॉई वुड गिव द रीजन फॉर व्हाट रीजन ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग सर्विस, राइट। सो इट इज हैपेंड 8 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म 5 ऑल्सो इशू बाय द हेड ऑफ ऑफिस टू द एम्प्लॉई हु इज गोइंग टू रिटायर। अगेन ये जो फॉर्म 5 इशू होता है 8 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट वन, फॉरवर्ड टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 5 फॉर कंप्लीशन एंड रिटर्न। अभी मैं बताया था 8 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर्म 5 इशू टू द concerned employee and the concerned employee should submit the form 5 6 months before the date of retirement। यहां पर 2 चीज याद रखना है, फॉर्म 5 इश्यू होता है 8 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और जो कंसर्न एम्प्लॉय है हु इज गोइंग टू रिटायर वो फॉर्म 5 को फिलअप करके वो फिर हेड ऑफ ऑफिस में सबमिट करता है एंड इट इज हैपेंड 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर। और फॉर्म 5 जो सबमिट होगा कहां पर होगा, हेड ऑफ ऑफिस में होगा। कब होगा ना, 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कब कंसर्न एम्प्लॉय फॉर्म 5 को रिसीव करेगा ना, 8 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। चलो 6th में आ गया कंप्लीशन ऑफ पेंशन पेपर्स पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 7। फॉर्म 7 का पार्ट 1 जिसको फिलअप करता है हेड ऑफ ऑफिस, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस टू फिलअप द Part 1 of Form 7. It is happened 4 months prior to the date of retirement. 4 months prior to the date of retirement. Right? Forwarding the pension papers to the accounts officer. But forwarding the pension papers to the PAO, Pay and Accounts Office, Rule 61 में है। जो कंप्लीशन ऑफ पेंशन पेपर्स पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 7 वो रूल 60 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, ये रूल 61 है, फॉरवर्डिंग द पेंशन पेपर्स टू द अकाउंट्स ऑफिसर। जो पेंशन पेपर्स हेड ऑफ ऑफिस पेंशन पेपर्स को फॉरवर्ड करता है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस व अकाउंट ऑफिसर को 4 months प्रायर टू द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 4 months प्रायर टू द डेट ऑफ सुपरएनुएशन हेड ऑफ ऑफिस फॉरवर्डिंग द पेंशन पेपर्स to the accounts officer. It is given in the rule 61 of CCS pension rules 1972. Pension payment order, issue of pension payment order rule 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। कब होगा ना, 1 month बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। पेंशन पेमेंट, हु इशू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर ना, अकाउंट्स ऑफिसर। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, PAO, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस अकाउंट्स ऑफिसर इशू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर 1 month बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ऑप्शन में नहीं है तो अकाउंट्स ऑफिसर, राइट। एंड इट इज हैपेंड 1 month बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू होगा वो 1 month बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये जो टाइमलाइन हो गया, कब कब
पेंशन पेपर्स को सबमिट किया जाएगा और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अभी चलेंगे फॉर्म्स को। फॉर्म 1, नॉमिनेशन फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ए फैमिली, रूल 53(1) ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। तो यहां पर नॉमिनेशन के ऊपर है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का फैमिली है, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ए फैमिली, देन द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट गिव द नॉमिनेशन डिटेल्स फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी, ओके, रिलेटेड टू फॉर्म 1। फॉर्म 1 में वो नॉमिनेशन डिटेल्स देगा। फॉर्म 2, नॉमिनेशन फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी, ये ग्रेचुइटी के लिए है। फॉर्म 2, नॉमिनेशन फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नो फैमिली, सेम रूल 53(1) ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का फैमिली नहीं है तब वो फॉर्म 2 में नॉमिनेशन डिटेल्स देगा रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी के लिए। हो गया एक फॉर्म 1 फैमिली है, फॉर्म 2 फैमिली नहीं है, तो नॉमिनेशन डिटेल्स देना चाहिए फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी। चलो फॉर्म 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स ऑफ फैमिली। यू नो दैट व्हेन द पर्सन ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब, देन ही और सी मस्ट गिव द डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स विथ एज, है कि? तो ये जो फॉर्म 3 में दिया जाता है डिटेल्स ऑफ फैमिली, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, रूल 54(12) में है फॉर्म 3। फॉर्म 3 में फैमिली मेंबर्स का डिटेल्स दिया जाएगा। फॉर्म 5 के बारे में अभी बताया था, 8 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, फॉर्म 5 इश्यू बाय द हेड ऑफ ऑफिस टू द कंसर्न एम्प्लॉई हु इज गोइंग टू रिटायर, एंड 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट concerned employee must submit the field form 5 to the head of office। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म 5 है, 8 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट हेड ऑफ ऑफिस फॉर्म 5 देता है कंसर्न एम्प्लॉय को जिसका रिटायर होने वाला है, और 6 months बिफोर द रिटायरमेंट वो इसको फिल करेगा, कंसर्न एम्प्लॉय उसको फिल करेगा फॉर्म 5 को, और 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट फिर उसको सबमिट कर देगा और वो हेड ऑफ ऑफिस को दे देगा। जो फॉर्म 7 है रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी, ये जो असेसमेंट होता है, जो फॉर्म 7, ये हेड ऑफ ऑफिस फॉर्म 7 पार्ट 1 को फिलअप करता है, और 4 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो पेंशन पेपर्स है हेड ऑफ ऑफिस किसको दे देता है ना, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस और अकाउंट ऑफिसर और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को दे देता है, ठीक है। मगर फॉर्म 7 इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस टू फिल अप द फॉर्म 7। इट इज रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी। फॉर्म 8 के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये एक लेटर है, जब पेंशन पेपर्स को भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा ना, 4 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसका जो लेटर हेडिंग है वो फॉर्म 8 है। Letter heading is given in form 8 when the head of office send pension papers to the accounts officer or pay and accounts office, right? ये letter heading है form 8। Form 10, letter by head of office to the member or members of the family of a deceased government servant where valid nomination for death cum retirement gratuity DCRG exist। Form 10 एक लेटर है जो लेटर हेड ऑफ द ऑफिस इश्यू करता है फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर वैलिड नॉमिनेशन इज देयर फॉर DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। ये फॉर्म 10 है, एक लेटर है, राइट। फॉर्म 11 अगेन अनदर लेटर बाय हेड ऑफ ऑफिस टू द मेंबर और मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर वैलिड नॉमिनेशन फॉर DCRG डज नॉट एग्जिस्ट। जहां पर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के लिए जहां पर नॉमिनेशन वैलिड नहीं है, वहां पर ये जो फॉर्म 11 है इसमें एक लेटर है जो हेड ऑफ ऑफिस इश्यू करता है मेंबर और मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और उनको इन्फॉर्म करता है कि जो डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका जो नॉमिनेशन दिया गया है वो वैलिड नहीं है, राइट। फॉर्म 11। फॉर्म 12 एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ डेथ ग्रेचुइटी ऑन द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है, ये एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन फिलअप करके दिया जाता है कि उस डेथ ग्रेचुइटी ग्रांट किया जाए। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ डेथ ग्रेचुइटी ऑन द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। फॉर्म 13, लेटर बाय हेड ऑफ ऑफिस टू द विडो और विडोर ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन। फॉर्म 13 जो है एक लेटर है, लेटर इट इज रिलेटेड टू द लेटर इशूड बाय हेड ऑफ ऑफिस टू द विडो और विडोर ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन 1964, राइट। फॉर्म 14 ये एप्लीकेशन है, फॉर्म 13 लेटर है, फॉर्म 14 एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन 1964 ऑन द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर। तो दोनों चीज, फॉर्म 13 जो है लेटर है, वो विडो और विडोर को ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को इशू होता है वो लेटर फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन। जो फॉर्म 14 है वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म को बेसिकली विडो और विडोर उसको फिलअप करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन 1964 ऑन द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर, राइट। फॉर्म 18, असेसमेंट एंड ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस। जब सर्विस व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज, then form 18 related to the assessment and authorization of payment of family pension and death gratuity. Again form 19, letter to the accounts officer forwarding papers for grant of family pension and death gratuity to the family of a government servant who dies while in service. Letter to the accounts officer forwarding papers, head of office forwarding papers and mention a letter to the accounts officer for grant of a family pension and death gratuity to the family of a government servant who dies while in service. Form 19. Form 20, letter sanctioning family pension 1964 to the child or children of a retired government servant who dies after retirement but does not leave behind a widow or widower. जब रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट उसका डेथ हो जाता है, उसका विडो और विडोर नहीं है, तब जो लेटर सैंक्शन होता है कि वो फैमिली पेंशन चिल्ड्रन को मिलेगा। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका डेथ हो गया उसका चिल्ड्रन को मिलेगा। तो ये रिलेटेड टू दिस लेटर, बेसिकली फॉर्म 20। फॉर्म 21, लेटर सैंक्शनिंग फैमिली पेंशन 1964 टू द चाइल्ड और चिल्ड्रन ऑन द डेथ और रीमैरिज ऑफ ए विडो और विडोर हु वाज इन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन। क्या है, विडो और विडोर उसका रीमैरिज हो जाता है और उसका डेथ हो जाता है। जब रीमैरिज हो जाएगा, विडो और विडोर का रीमैरिज हो जाएगा, तब वो एलिजिबल नहीं है फैमिली पेंशन के लिए। कि उनका डेथ हो जाएगा तब उनका चिल्ड्रन को, बोथ दो केस में उनका चिल्ड्रन को फैमिली पेंशन मिलेगा। इसके लिए रिलेटेड टू द लेटर याद रखना है, जब विडो और विडोर का रीमैरिज हो जाता है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर फैमिली पेंशन, और उनका डेथ हो जाता है, तब वो फैमिली पेंशन ट्रांसफर हो जाता है चिल्ड्रन के नाम में। ये फॉर्म 21 जो लेटर सैंक्शनिंग फैमिली पेंशन। फॉर्म 22, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रेसिडुअरी ग्रेचुइटी ऑन द डेथ ऑफ ए पेंशनर। ये बेसिकली रिलेटेड टू द रेसिडुअरी ग्रेचुइटी फॉर्म 22 ऑन द डेथ ऑफ ए पेंशनर। फॉर्म 26 ये एक अंडरटेकिंग है, राइट, फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये जो डिटेल्स फॉर्म में बताया, तो कुछ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म्स फॉर कम्यूटेशन। हम कम्यूटेशन जानते हैं, जब पेंशन फिक्स हो जाएगा, यदि विद इन 1 year ऑफ रिटायरमेंट इफ ए पर्सन वांट टू कम्यूट सर्टन परसेंटेज ऑफ द पेंशन, देन इट कैन बी हैपेंड विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटायरमेंट के 1 year के अंदर यदि पेंशन का कुछ परसेंटेज को कम्यूट कर दिया जाता है, तब मेडिकल एग्जामिनेशन का ज़रूरत नहीं है। बट मोर देन 1 year मेडिकल एग्जामिनेशन का ज़रूरत है। ओके, इफ द रिटायर्ड एम्प्लॉई वांट टू कम्यूट सर्टन पोर्शन ऑफ द पेंशन, और हम जानते हैं जो कम्यूट होगा वो मैक्सिमम 40% होगा और लॉन्ग सम अमाउंट मिल जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल, अभी मेरा पेंशन फिक्स हो गया, मैं अभी 30% पेंशन को कम्यूट कर दिया, तो मुझे उसका कम्यूटेशन फैक्टर है, तो उसके हिसाब से मुझे एक लॉन्ग सम अमाउंट मिल गया। उसके बाद जो पेंशन फिक्स हुआ था उसका 70% मुझे मिलेगा, क्योंकि 30% पेंशन को मैं कम्यूट कर दी। तो उसके ऊपर है फॉर्म्स। फॉर्म 1, एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ ए परसेंटेज ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पर जैसे मैं बताया, विद इन 1 year ऑफ रिटायरमेंट, if the retired employee want to commute certain percentage of the pension, वो कितना परसेंटेज होगा ये फॉर्म 1 में मेंशन होगा। तो यहाँ पर विद इन 1 year देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सर्टन percentage of pension must be commuted. Form 1A, application for commutation of superannuation pension without medical examination when the applicant desires that the payment of the commuted value of pension should be authorized through the pension payment order. Before retirement, यदि कम्यूटेशन पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया जाता है, जिस डेट में रिटायरमेंट होता है उसका नेक्स्ट डे में लमसम अमाउंट, जो कम्यूटेशन जितना परसेंटेज कम्यूट किया गया उसका लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्म 1A है, यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ सुपरएनुएशन पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन व्हेन द एप्लीकेंट डिजायर्स दैट द पेमेंट ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन शुड बी ऑथराइज्ड थ्रू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर। भाई पेंशन पेमेंट ऑर्डर में उसको ऑथराइज कर दिया जाएगा कि वो लमसम अमाउंट को ऑथराइज कर दिया जाएगा और उसको मिल जाएगा जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये फॉर्म 1A है। ओके, फॉर्म 2 जो है आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, मैं बताया अभी, आफ्टर 1 year ऑफ रिटायरमेंट इफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय वांट टू कम्यूट सर्टन परसेंटेज ऑफ पेंशन देन मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टन परसेंटेज ऑफ पेंशन कैनॉट बी कम्यूटेड। तो ये जो फॉर्म 2 है, इट इज एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कम्यूटेशन पेंशन के लिए, फॉर्म 1, फॉर्म 1A, फॉर्म 2। कुछ जनरल प्रोविजंस को चलेंगे। रिटायरमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच एज ऑफ सुपरएनुएशन इज अटेंड। फंडामेंटल रूल 56, रूल 5 ऑफ पेंशन रूल्स, उसको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ को छोड़ के और कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो जाता है कोई भी डेट में, तब जो कंसर्न एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा वो लास्ट डेट ऑफ द मंथ आफ्टरनून। सपोज जून 5 है डेट ऑफ बर्थ, तो जून 30 आफ्टरनून में रिटायरमेंट होगा, लास्ट डेट ऑफ द मंथ एक्सेप्ट फर्स्ट डेट। जो फर्स्ट डेट है, सपोज 1 जुलाई में डेट ऑफ बर्थ है, तब उस केस में प्रायर टू 1 जुलाई, इट मीन्स 30 जून आफ्टरनून में रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट डेट के अलावा और कोई डेट में डेट ऑफ बर्थ होता है तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ आफ्टरनून में रिटायरमेंट दे दिया जाता है। ठीक है भाई। सेकेंड चीज, वो फर्स्ट डेट जो मैं बताया, एन एम्प्लॉय हुज बर्थ डेट इज द फर्स्ट ऑफ द मंथ shall retire on the afternoon of the last day of the preceding month। अभी मैं बताया उसको, ये भी फंडामेंटल रूल 56, रूल 5 ऑफ पेंशन रूल्स। डे ऑफ डेथ ऑफ एन ऑफिशियल ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और अर्नड लीव टू बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ लीव। यदि ऑफिशियल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में है मेडिकल सर्टिफिकेट में और अर्नड लीव में है, उसका डेथ हो जाता है, तो वो पीरियड को लीव मान लिया जाता है। राइट। चलो अदर जनरल प्रोविजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। रूल 81A पेंशन रूल्स, फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी द इंप्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूअंस। तो पेंशन को ग्रांट करने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए जो कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्यूचर गुड कंडक्ट इट इज द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूअंस। ये रूल 81A पेंशन रूल्स, ये इसको भी याद रखना है, रूल 81A। रूल 81B में ये दिया गया है कि इफ ए पेंशनर इज कन्विक्टेड फॉर ए सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, अंडरलाइन कर दिया गया है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाय गिविंग ऑर्डर इन राइटिंग कैन विथहोल्ड और विथड्रॉ ए पेंशन और पार्ट should not reduce below rupees 9,000 thereof permanently or for a specified period. Rule 81B, यदि pensioner convicted for a serious crime by the court or is found guilty of grave misconduct, then appointing authority का discretionary power है, वो
पेंशन को विथ होल्ड कर सकता है और पेंशन का एक पार्ट को विथड्रॉ कर सकता है, मगर मिनिमम पेंशन 9,000 है, उससे कम नहीं होगा यदि पेंशन विथड्रॉ होगा। और परमानेंटली और फॉर स्पेसिफिक पीरियड, परमानेंटली हो सकता कर सकता है और फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए कर सकता है। ये रूल 81B में मेंशन है, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। नेक्स्ट, द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड और इज डिस्चार्ज्ड और इज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज हिज लास्ट वर्किंग डे। जिस डेट में रिटायर होता है, डिस्चार्ज होता है, अलाउड टू रिजाइन, ये सब लास्ट वर्किंग डे है। द डे ऑफ डेथ शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए वर्किंग डे। जिस डेट में कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है उसको भी वर्किंग डे माना जाएगा। ये रूल 5 पेंशन रूल्स में है। नेक्स्ट वन, रेलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑन ए हॉलीडे, ये फॉर 56 में है। द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग ऑन सुपरएनुएशन should formally relinquish charge of office on the afternoon of that day itself, even if it happens to be closed holiday. The cash stores etc. may be made over on previous working day. अभी तो हम डिस्कस किए कि फास्ट डेट के अलावा कोई डेट में डेट ऑफ बर्थ आ जाता है तो मंथ का जो लास्ट डे है उसका आफ्टरनून में रिटायरमेंट दिया जाता है। सपोज वो डे क्लोज्ड हॉलीडे है, यदि फास्ट डेट में आ जाता है डेट ऑफ बर्थ तो उसका प्रीवियस ओनली फास्ट डेट केस में उसका प्रीवियस डेट में आफ्टरनून में रिटायरमेंट दिया जाता है। जैसे फर्स्ट सितंबर तो अगस्त 31 आफ्टरनून में रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। सपोज वो क्लोजिंग हॉलीडे है कि सपोज एनी अदर डेट, सपोज जून 5 में डेट ऑफ बर्थ है तो जून 30 आफ्टरनून में रिटायरमेंट होगा, वो क्लोजिंग हॉलीडे है। तो ये जो फंडामेंटल रूल 56 है उसी डे में फॉर्मली वो चार्ज हैंडओवर करेगा, मगर उसके पहले जस्ट बिफोर दैट वो क्या करेगा, उसका कैश और जो स्टोर्स है वो हैंडओवर कर देगा। जिस दिन सपोज रिटायरमेंट डेट आ जाता है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ रिटायरमेंट डेट आ जाता है और वो क्लोजिंग हॉलीडे है, उस दिन में फॉर्मली उसको हैंडओवर करना पड़ेगा जो भी चार्ज उसके पास है, मगर उस प्रीसीडिंग ऑफ दैट डेट वो क्या करेगा, जो कैश है स्टोर से उसको हैंडओवर ऑलरेडी कर देगा, राइट। और क्लोजिंग हॉलीडे होने से भी उसका फॉर्मली रिटायरमेंट होगा। लिमिटेशंस ऑफ नंबर ऑफ पेंशन रूल 7 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल 7 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, ए गवर्नमेंट सर्वेंट shall not earn 2 pensions in the same service or post at the same time by the same continuous service. A pensioner receiving superannuation or retiring pension and re-employed subsequently is not eligible for a separate pension and gratuity for the period of his re-employment. बहुत कॉमन है। सुपरएनुएशन 60 एज कंप्लीट होने के बाद सुपरएनुएशन मिलता है। सुपरएनुएशन के बाद यदि वो रिटायर्ड एम्प्लॉय रीएम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करता है तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए ज्वाइन करेगा। वहाँ पर जो पोस्ट होगा वो टेम्पररी, जो रीएम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करेगा आफ्टर सुपरएनुएशन, वो जो पीरियड होगा वो टेम्पररी पोस्ट होगा, उसमें वो पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपको याद रखना है सुपरएनुएशन के बाद, ठीक है। और एक है गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अर्न 2 पेंशंस सेम सर्विस और पोस्ट एट द सेम टाइम बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस। सेम सर्विस और पोस्ट और वो सेम कंटिन्यू सर्विस होगा तो उस केस में 2 पेंशन वो नहीं ले सकता, ठीक है। और सुपरएनुएशन के बाद रीएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके लिए भी पेंशनरी बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेगा। उसका जो पोस्ट होगा वो टेम्पररी पोस्ट होगा, उसको पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। चलो यहाँ पर देखेंगे ऑन रीएम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट और मिलिट्री सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 19। जो रीएम्प्लॉयमेंट है, मैं 2 चीज बताना चाहता हूं यहां पर। बेसिकली कुछ एम्प्लॉयज वो कॉम्पेंसेशन पेंशन लेते हैं। कॉम्पेंसेशन पेंशन क्या है, उनका पोस्ट अबोलिश हो गया और इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं है, उनको लोअर पोस्ट दिया गया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं किए, तब उनको रिटायर कर दिया गया और कॉम्पेंसेशन पेंशन दे दिया गया। और इनवैलिड पेंशन बिफोर सुपरएनुएशन, ये सब जो होता है बिफोर सुपरएनुएशन,
ये जो कॉम्पेंसेशन पेंशन के ऊपर बताया बिफोर सुपरएनुएशन। इनवैलिड पेंशन, सपोज मेडिकल बोर्ड और मेडिकल अथॉरिटी डिक्लेयर दैट द पर्सन इज अनफिट फिजिकली एंड मेंटली टू डू द सर्विस, और उसको इनवैलिड पेंशन दे दिया गया। ये सब जो हुआ बिफोर सुपरएनुएशन, और वो रीएम्प्लॉयमेंट ले लिए। बाद में उनका रीएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो उस केस का बात है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मगर सुपरएनुएशन के बाद जिनको 60 एज हो गया और रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उनको रीएम्प्लॉयमेंट मिलता है, तब वहां पर पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा अप टू 60 ईयर्स। ये जो रीएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है वो बिफोर सुपरएनुएशन, बिफोर 60 ईयर्स। देखेंगे क्या ऑप्शन है। एम्प्लॉइज हु हैड रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट पेंशन आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स फॉर रीएम्प्लॉयड सर्विस। बहुत कॉमन चीज है। सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट पेंशन मिलने के बाद 60 एज के बाद ऑलरेडी सुपरएनुएशन पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है, उसके बाद सपोज कंसर्न एम्प्लॉय ज्वाइन द जॉब आज रीएम्प्लॉयमेंट, तब वो पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी बताया जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेगा अप टू 60 ईयर्स मिलेगा। एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड ऑन कॉम्पेंसेशन पेंशन, अभी मैं बताया, और इनवैलिड पेंशन बिफोर सुपरएनुएशन आर एलिजिबल फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स फॉर रीएम्प्लॉयड सर्विस। सपोज एक कंसर्न एम्प्लॉय 50 एज में उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है कि इनवैलिड पेंशन मिल रहा है 50 एज में, और उसके बाद उसको रीएम्प्लॉयमेंट मिला, तब वो अप टू 60 तक वो पेंशनरी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, वैसे हम जानते हैं कि बेसिकली मिलिट्री सर्विस होता है बिफोर सुपरएनुएशन, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तब वो रीएम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं और उनको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेगा। वही दिया गया, एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन आर एलिजिबल फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स इन रीएम्प्लॉयड सर्विस। सपोज फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस में एक पर्सन था, 45 एज में उसका रिटायर हो गया मिलिट्री सर्विस से, तो अभी वो और एक जॉब ज्वाइन कर लिया, उसका रीएम्प्लॉयमेंट में वो अभी और एक जॉब ज्वाइन कर लिया, तो ऑब्वियसली उसको पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा अप टू 60 तक। ठीक है, मगर यहां पर जो है बेसिकली मिलिट्री सर्विस में जब रीएम्प्लॉयमेंट में वो ज्वाइन करता है, तब उसको 1 ईयर के अंदर ऑप्शन है, 1 ईयर के अंदर उसको ऑप्शन लेना है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे भी उसको डिस्कशन करेंगे। भाई द अपॉइंटिंग अथॉरिटी व्हाइल इशूइंग ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट should direct the employee in writing the exercise the option within 1 year of the date of his re-employment। जिस डेट में उसका री-एम्प्लॉयमेंट हुआ उसका 1 ईयर के अंदर उसको ऑप्शन देना है। वो ऑप्शन जो है आगे में डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको याद रखना है विद इन 1 ईयर, ऑन द डेट ऑफ हिज री-एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर ही मस्ट गिव द ऑप्शन। 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑन रीएम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 19, यही पर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में क्या है, टू कंटिन्यू टू ड्रॉ पेंशन और रिटेन द ग्रेचुइटी फॉर हिज अर्लियर सर्विस, इन विच केस हिज फॉर्मर सर्विस शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर फ्यूचर पेंशनरी बेनिफिट्स। सपोज एग्जाम्पल 50 एज में कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है, उसका पोस्ट अबोलिश हो गया, इक्विवेलेंट पोस्ट अवेलेबल नहीं था, लोअर पोस्ट वो एक्सेप्ट नहीं किया, तब उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है कि वो मेडिकल बोर्ड और मेडिकल अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया कि इनवैलिड है, बेसिकली फिजिकली एंड मेंटली अनफिट टू डू द वर्क, उसको इनवैलिड पेंशन मिला 50 एज में, मेरा एग्जाम्पल में। उसके बाद उसको रीएम्प्लॉयमेंट मिल गया, मगर वो ऑप्शन 1 में चुना कि जो अर्लियर सर्विस में जो पेंशन उसको मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन पेंशन की इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, और जो ग्रेचुइटी मिल चुका है वो उसको रिटेन करेगा। तो इस केस में क्या है, जो अर्लियर सर्विस का पीरियड को सेकेंड सर्विस में क्वालिफाइंग सर्विस के आकार में नहीं माना जाएगा, वो फर्स्ट सर्विस में हो गया, वो पेंशन ले रहा है और ग्रेचुइटी ले चुका है। जैसे मैं बताया मेरे एग्जांपल में 50 एज में, अभी जो 10 साल वो सेकेंड
जॉब में काम कर रहा है, री एम्प्लॉयमेंट में जो 10 साल के लिए काम करेगा, उसका पेंशनरी बेनिफिट अलग होगा। बेसिकली पेंशन और ग्रेचुइटी अलग होगा, ठीक है। और यहां पर याद रखना है, क्योंकि वो पेंशन एंड ग्रेचुइटी को रिटर्न कर लिया, तो उसका जो अर्लियर सर्विस का जो क्वालिफाइंग सर्विस था वो सेकेंड सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। मेरे एग्जाम्पल में जैसे 50 एज में उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है और वो री एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो अप टू 60 एज तक वो 10 साल और सेकेंड जॉब में काम किया, तो 10 साल में जो पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा, पेंशन ग्रेचुइटी बोलेगा, जो प्रीवियस क्वालिफाइंग सर्विस वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 1 है। मिलिट्री पर्सनल के लिए भी यही है, जब उनको री एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तब 1 ईयर के अंदर वो ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन में जाएंगे। मगर यहां पर जो जनरली बेसिकली जो सिविल पोस्ट है, ये मिलिट्री सर्विस के लिए, मिलिट्री पर्सनल के लिए जब उनका री एम्प्लॉयमेंट होगा वो 1 ईयर्स के अंदर ऑप्शन देंगे, ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2। मगर हमारे लिए बेसिकली सिविल पोस्ट में जब हम री एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, जब हम री एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करेंगे, तब 3 मंथ्स के अंदर हमको ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 तो मैं डिस्कस किया, ऑप्शन 2 क्या है, यहां पर हम बोलते हैं कि जो अर्लियर सर्विस में जो पेंशन और जो ग्रेचुइटी मिला है उसको हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 को हम डिस्कस करेंगे, टू सीज टू ड्रॉ हिज पेंशन एंड रिफंड द अमाउंट ऑफ पेंशन व्हिच वाज आइदर इग्नोर्ड और नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फिक्सिंग हिज पे इन द री-एम्प्लॉयड पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ री-एम्प्लॉयमेंट टू द डेट ऑफ सीसेशन ऑफ ड्रॉयल ऑफ पेंशन, बट द पेंशन ड्रॉन प्रायर टू द डेट ऑफ री-एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिफंडेड। इसके ऑप्शन 2 जो है, मैं थोड़ा उसको अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। ऑप्शन 2 में क्या है कि हम रिफंड करेंगे जो हमारा सेकेंड री एम्प्लॉयमेंट में जो हम जॉब में है, हम चाहते हैं कि हमारा जो अर्लियर सर्विस था, जो फॉर्मर सर्विस था, उसका क्वालिफाइंग सर्विस इसमें इंक्लूड होगा। तब हमको क्या क्या रिफंड देना पड़ेगा ना, जिस डेट में री एम्प्लॉयमेंट हुआ और जिस डेट में हमारा पेंशन बंद हो गया, उसी के अंदर जो पेंशन मिला है उसको हमको रिफंड देना पड़ेगा, फर्स्ट वन। बट बिफोर री एम्प्लॉयमेंट जो पेंशन मिला है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। मैं क्या बोला, जिस डेट में री एम्प्लॉयमेंट हुआ और जिस डेट में हमारा पेंशन बंद हुआ कि हम पेंशन नहीं, हमको पेंशन नहीं चाहिए, और उसके अंदर हम पेंशन जो लेंगे, डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट एंड डेट ऑफ सीसेशन ऑफ पेंशन, उसके अंदर जो पेंशन लिया है उसको रिफंड करेंगे विथ इंटरेस्ट। सेकेंड वन, जो ग्रेचुइटी लिया है फॉर्मर सर्विस में उसको रिपेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट। यदि हम अर्लियर सर्विस में जो हम पेंशन मिल रहा था उसका कुछ पोर्शन हम कम्यूट किया है, ओके, बेसिकली अर्लियर पेंशन फॉर फास्ट सर्विस, सर्टन परसेंटेज ऑफ द पेंशन ऑलरेडी वी हैव कम्यूटेड, तो वो कम्यूटेड पार्ट जो लॉम सम अमाउंट ले चुके हैं ऑलरेडी, हाउ मच अमाउंट ऑलरेडी वी हैव टेकन, इट मस्ट बी रिफंडेड। सो 3 चीज रिफंड होगा यदि हम ऑप्शन 2 को चूज करेंगे। और हमारा अर्लियर सर्विस की फॉर्मर सर्विस का जो क्वालिफाइंग फॉर्मर सर्विस का जो पीरियड है वो हम सेकेंड जॉब में उसको क्वालिफाइंग सर्विस के आकार में हम ऐड करेंगे, तब हमको रिफंड करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कि अर्लियर सर्विस और फॉर्मर सर्विस में जो क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड था वो भी सेकेंड जॉब में वो इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे 50 एज में सपोज 50 एज में उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है और वो वॉलंटरी रिटायरिंग पेंशन मिल रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुका है फास्ट जॉब में, कि कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है, कि इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, अभी उसका री एम्प्लॉयमेंट हो गया, अभी री एम्प्लॉयमेंट हो गया मीन्स वो चाहता है कि जो फास्ट जॉब में जो क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड था वो भी इंक्लूड होगा, वो कंटिन्यू होगा अप टू 60 तक, तब उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा जो फास्ट जॉब का जो पेंशन है, नॉट बिफोर डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट। डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट के बिफोर जो पेंशन मिला है उसको रिफंड करना नहीं पड़ेगा, जो जिस डेट में री एम्प्लॉयमेंट मिला और जिस डेट में पेंशन बंद हुआ उसके अंदर जो पेंशन है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। पेंशन का जितना पोर्शन कम्यूट किया गया है, जो लॉम सम अमाउंट लिया गया है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और जो ग्रेचुइटी उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, जो जीपीएफ का इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट।
तो वही दिया है, मगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक अंडरलाइन किया कि बिफोर द डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट, बिफोर द डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट द कंसर्न एम्प्लॉई ऑलरेडी हैज टेकन द पेंशन एंड दिस अमाउंट ऑफ पेंशन इज नॉट रिफंडेड। डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट के बिफोर जो पेंशन मिला है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। मैं क्या बोला, जिस डेट में रीएम्प्लॉयमेंट हुआ और जिस डेट में पेंशन बंद हुआ उसके अंदर जो पीरियड है जो पेंशन मिला उसको रिफंड किया जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज द पर्सन ए गेटिंग पेंशन रुपीज बिफोर रिटायरमेंट, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मगर पेंशन फास्ट जॉब का पेंशन है, अर्लियर सर्विस का पेंशन अभी 45,000 मिल रहा है। अभी जो रीएम्प्लॉयमेंट हुआ उसका पे फिक्सेशन होगा, ओके, पे फिक्सेशन होगा रीएम्प्लॉयमेंट जॉब में। तो वो ये बोला कि मुझे जो पेंशन मिल रहा है कि 20% ऑफ द पेंशन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सिंग द पे इन केस ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट। जब रीएम्प्लॉयमेंट हुआ जो पे फिक्सेशन होगा उसका 20% पेंशन का कंसिडर किया गया, 20% पेंशन का कंसिडर किया गया। तो यहाँ पर जो पेंशन मिल रहा था 45,000, उसका 20% 9,000 है, उसको कंसिडर किया गया जब रीएम्प्लॉयमेंट में उसका जब पे फिक्सेशन हुआ रीएम्प्लॉयमेंट में। कैसे, एक्चुअली उसका पे फिक्सेशन होना था 92,700, मगर अभी ये हुआ 83,700, उससे 9,000 माइनस कर दिया गया मेरा एग्जांपल में, क्योंकि 20% ऑफ द पेंशन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सिंग द पे रिलेटेड टू द रीएम्प्लॉयमेंट। तो 80% पेंशन को कंसिडर नहीं किया गया, 80% ऑफ द पेंशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सिंग द पे रिलेटेड टू द रीएम्प्लॉयमेंट। तो जब अब रिफंड होगा, जैसे कैसे ना, जिस डेट में रीएम्प्लॉयमेंट हुआ और जिस डेट में पेंशन का सीसेशन बंद कर दिया गया उसके अंदर कितना पेंशन को रिफंड किया जाएगा एग्जांपल में ना, 80% हमारा पे फिक्सेशन जो रीएम्प्लॉयमेंट का पे फिक्सेशन हुआ उसमें 80% पेंशन को कंसिडर नहीं किया गया, तो उसी का ही रिफंड होगा। जैसे 36,000 है, बिकॉज ऑलरेडी 9,000 कंसिडर किया गया, 9,000 इन माई एग्जाम्पल 20% ऑफ द पेंशन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सिंग द पे। तो इसीलिए तो जो एक्चुअली पे फिक्सेशन होना था रीएम्प्लॉयमेंट में 92,700 वो हो गया 83,700। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है। और यदि अल्टरनेट ऑप्शन में क्या है, जो 100% पेंशन इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फिक्सिंग द पे रिलेटेड टू द रीएम्प्लॉयमेंट, जो रीएम्प्लॉयमेंट में जो पे फिक्सेशन हुआ 100% पेंशन को कंसिडर नहीं किया गया वहां पर, तब क्या है ना, डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट और जिस डेट में पेंशन बंद हो गया, डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट एंड डेट ऑफ सीसेशन ऑफ पेंशन, उसके अंदर जो भी पेंशन लिया गया है उसका रिफंड किया जाएगा विथ इंटरेस्ट। मगर इस केस में जो मेरा एग्जाम्पल में 80% ऑफ द पेंशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फिक्सिंग द पे रिलेटेड टू द रीएम्प्लॉयमेंट, उसका रिफंड होगा। यदि हम 100% पेंशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सिंग द पे, तब जो 100% पेंशन जो लिया जाएगा विद इन द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट एंड डेट ऑफ सीसेशन ऑफ पेंशन रिफंड किया जाएगा विथ इंटरेस्ट। मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट जो पेंशन मिला है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। और क्या क्या दो रिफंड किया जाएगा ऑप्शन 2 में बताया, कम्यूटेशन, पेंशन का हम 40% मैक्सिमम 40% ऑफ द पेंशन कैन बी कम्यूटेड। जो कम्यूट किया गया है जितनी पोर्शन पेंशन, उसके लिए हम लॉम सम ले चुके हैं, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। जैसे जीपीएफ में जो इंटरेस्ट था उसको रिफंड करना पड़ेगा, वैसे ही जो रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी मिला है उसको भी रिफंड करना पड़ेगा। तो ये केस में क्या है, बिफोर सुपरएनुएशन, बिफोर सुपरएनुएशन हमको दो ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में हम हमारा पेंशन और ग्रेच्युइटी को रिटर्न करेंगे, तो हमारा जो सेकेंड जॉब में, जो रीएम्प्लॉयमेंट जॉब में जितनी पीरियड हम काम करेंगे अप टू 60 ईयर्स तक, उतना पीरियड के लिए हमको पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा, पेंशन और ग्रेच्युइटी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम प्रीवियस सर्विस व फॉर्मर सर्विस व अर्लियर सर्विस का जो क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड था, हम उसको सेकेंड
जॉब में वो सर्विस को हम इंक्लूड करना चाहते हैं, तो अब इस केस में हमको रिफंड देना पड़ेगा 3 चीज। ओके, पेंशन बिटवीन द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट एंड डेट ऑफ सेसेशन ऑफ पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, एंड थर्ड वन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ओके, रिफंड विथ इंटरेस्ट एज यूजुअल जीपीएफ इंटरेस्ट रेट। और यहां पर जो सिविल पोस्ट के लिए जब हमारा री एम्प्लॉयमेंट में जब ज्वाइन होगा तब विदिन 3 months ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिलेटेड टू द री एम्प्लॉयमेंट हमको ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। मगर जो मिलिट्री पर्सनल है उनको तो बेसिकली बिफोर सुपरएनुएशन उनका रिटायरमेंट होता है बिफोर 60 एज, उनके लिए जब उनका री एम्प्लॉयमेंट होगा जिस डेट में उसका 1 ईयर के अंदर उनको ऑप्शन चूज करना है। हमारे लिए सिविल पोस्ट के लिए 3 months और उनके लिए 1 ईयर, इसको याद रखना है। Other provisions, the option should be exercised within 3 months of the date of the order of substantive appointments, और if the officer is on leave on that day within 3 months of his return from leave। अभी मैं बताया जब री एम्प्लॉयमेंट होगा उसका 3 months के अंदर हमको ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन 1 लेंगे कि ऑप्शन 2 लेंगे। ऑप्शन 1 लेंगे तो पास्ट जो प्रीवियस सर्विस का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड था उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो ऑप्शन 2 है यदि हम अर्लियर सर्विस व फॉर्मर सर्विस का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड को हम इंक्लूड करेंगे तब हमको रिफंड करना पड़ेगा। इसको पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूं। और ये जो मिलिट्री पर्सनल से ओके उनका जो रिटायरमेंट होता है बिफोर सुपरएनुएशन, वो जब उनका री एम्प्लॉयमेंट होता है उनके लिए ऑप्शन 1 ईयर के अंदर है, हमारे लिए 3 months बेसिकली सिविल पोस्ट के लिए। इफ नो ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड विद इन दिस टाइम लिमिट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी डीम्ड टू हैव ऑप्टेड टू रिटेन द पर्सन और ग्रेचुइटी फॉर अर्लियर सर्विस। यदि हम कोई ऑप्शन चूज नहीं किया तब ये मान लिया गया कि जो पेंशन मिल रहा है ग्रेचुइटी उसको हम रिटेन करेंगे, और जो सेकेंड जॉब में जितनी पीरियड हम काम करेंगे अप टू 60 ईयर्स तब उसका जो पेंशनरी बेनिफिट्स हम उतनी दिन के लिए पेंशनरी बेनिफिट्स हम लेंगे। इफ सेकेंड ऑप्शन चूज रिफंड शुड बी मेड विद इन 1 month। और एक मजा बात है, जब गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन होगा जब हम सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे कि हमको रिफंड देना है पेंशन ग्रेचुइटी एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नॉर्मली विथ जीपीएफ इंटरेस्ट हमको देना है, तो जब गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जब गवर्नमेंट से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा तब विद इन 1 month हमको उसको रिफंड दे देना है। विद इन 1 month जो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मिला कि आप रिफंड करो, हम विद इन 1 month हम रिफंड नहीं करेंगे तब गवर्नमेंट क्या करेगा कि एक पेनल्टी डालेगा। ऐसे तो नॉर्मली हम जीपीएफ बेसिकली जीपीएफ इंटरेस्ट जो है नॉर्मली लगता है, मगर विद इन 1 month हम रिफंड नहीं करेंगे आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, देन अनदर 2% एडिशनल पेनल्टी वुड बी इम्पोज्ड। ठीक है, और यहां पर दिया है सेकेंड ऑप्शन चूजन रिफंड शुड बी मेड विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विथ इंटरेस्ट एट द रेट एज एप्लीकेबल टू जीपीएफ डिपॉजिट्स। जब से हम ग्रेचुइटी ले चुके हैं कि जब से हम पेंशन को कम्यूट किया है उससे हम जीपीएफ इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से अब तक जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो जीपीएफ इंटरेस्ट लगेगा वहाँ पर। बेसिकली जो पेंशन हम रिफंड करेंगे बिटवीन द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट एंड डेट ऑफ सेसेशन ऑफ पेंशन, उसी के अंदर जो पेंशन मिला है उसको हम रिफंड करेंगे विथ जीपीएफ इंटरेस्ट। बिफोर डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट जो पेंशन मिला है उसको हम रिफंड नहीं करेंगे, और ये नहीं होगा तब पेनल इंटरेस्ट होगा विद इन 1 month after government communication within 1 month if the refund would not be made then additional 2% interest would be imposed. Penal interest at the rate 2% per annum shall be charged on delayed payments in addition to normal rate of interest mentioned above if the amount with interest is not refunded within the 1 month. The right to count former service for future pension will not revive until the whole amount due has been refunded to the government. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम पूरा अमाउंट रिफंड नहीं किया है तब तक हमारा जो पास्ट जो फॉर्मर सर्विस का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड था उसको रिवाइव नहीं किया जाएगा, और उसको अभी जो सेकेंड जॉब में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब तक पूरा अमाउंट रिफंड नहीं होगा। इफ द इंडिविजुअल डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द रिफंड, अभी सपोज एम्प्लॉय सेकेंड ऑप्शन को चुना और उसका डेथ हो गया, उसके इसमें जो डेथ ग्रेचुइटी मिलेगा वो डेथ ग्रेचुइटी से जो बाकी जो अमाउंट है उसको रिकवरी कर दिया जाएगा। ठीक है,
If the individual dies before completion of the refund, the balance due will be adjusted against the death of gratuity payable to his family. In the case of a government servant who opts for option 1 above, 2 सेपरेट पेंशन हो गया. जो बिफोर सुपर एनुएशन एक पेंशन ले रहा है, बिफोर सुपर एनुएशन वो और एक री एम्प्लॉयमेंट ले लिया और वो ऑप्शन 1 को रिटर्न किया, वो बोला मैं रिफंड नहीं करूंगा, तो ऑप्शन 1 रिटर्न किया, तो वो जो सेकेंड जॉब में जितना पीरियड काम करेगा अप टू 60 ईयर्स तक, उसके लिए उसको पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा. तो दो जो पेंशनरी बेनिफिट मिला, हम ये मान लेंगे यदि हमारा सर्विस कंटिन्यू होता, जो पेंशनरी बेनिफिट मिलता, और जो 2 पेंशनरी बेनिफिट हमको मिल रहा है, जो सर्विस कंटिन्यू होता तो हमको जो पेंशनरी बेनिफिट मिलता उससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो 2 separate pensionary benefits put together cannot exceed that which would be admissible on final retirement if both the periods had been combined. Okay, if the period माने क्या है, यदि हम मान लेंगे if the period would continue as if the period would have continue, okay, जो पेंशन हमारा फिक्स होता, ये जो 2 सेपरेट पेंशन मिल गया, कंबाइंड पेंशन, 2 pensionary benefits should not exceed the pensionary benefit. It is admissible if the service would have continued. तो इसको भी याद रखना है. 2 पेंशनरी बेनिफिट कभी भी, यदि हम मान लेंगे कि हमारा सर्विस कंटिन्यू होता है और जो पेंशनरी बेनिफिट मिलता उससे ज़्यादा नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आप वेट कीजिए, मैं पूरा CCS पेंशन रूल्स 1972 के ऊपर पूरा डिस्कशन करूंगा और मेरा नेक्स्ट पार्ट्स आई विल रिलीज इन सब्सिक्वेंट टाइम, इन पोस्टरिंग टाइम. माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, and in description box also my telegram channel is there. Please click on it and join the group and avail all the videos. So my friends, definitely till the end with patience you go through the video, definitely you can get some interesting information and it would be useful for you. Thank you and namaskar.